So in the last session, we have discussed about polygons. So regular polygon, फिर irregular polygon था. Then we have discussed what is the interior angle in a regular polygon. And in the last session, we have discussed more or less related to quadrilaterals only. Now we are going to discuss uh, hexagon and other polygons. ठीक है. So just quickly remind this: the area of parallelogram is L, sorry, base into height, or LB sin theta. Diagonals are not perpendicular, but diagonal bisect each other. Rhombus is half d1 d2. Diagonals perpendicular, yes. Diagonal bisect, yes. Diagonals equal, no. Rectangle is L into B. Diagonals perpendicular, no. Bisect, yes. Equal, yes. Square, side square, all are yes. Other formula for finding area of such square is d square by 2, where d is the diagonal. Kite is half d1 d2. Diagonals perpendicular, yes. Bisect, only the shorter diagonal get bisected. Diagonal equals, no. Area of trapezium is half sum of parallel side into height. आइसोस्केलस ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जो जिसके दोनों साइड्स इक्वल होती है. Isosceles trapezium is also a cyclic quadrilateral, and area of a cyclic quadrilateral is S, S minus A, S minus B, S minus C, S minus D. So I guess I said one extra S. No, it has to be S minus A, S minus B, S minus C, S minus D. Okay. Now let's start with hexagons. So ABCDEF is a regular hexagon. What is the ratio of area of FBD to ABCDEF? एक regular hexagon हमने बना लिया. Now, what is the ratio of area of FBD to ABCDEF? ठीक है. So कुछ लोग
1/2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 1/3 बोलते हैं, ठीक है। Let me draw some diagonals. So I'm going to draw the largest diagonals. So F के साथ largest diagonal कहाँ पर बनेगी, कौन से वर्टेक्स पे बनेगी, जल्दी से बता दो। F के साथ largest diagonal कौन से वर्टेक्स पे बनेगी, A, B, C, D या E? Should be C, है ना। A के साथ it will be D and B के साथ it will be E. Now, can I say quadrilateral F A B C is similar to quadrilateral F E D C? अगर मैं इन दो पार्ट्स की बात करूं, ये सिमिलर है क्या है, इक्वल है। सो टोटल एंगल कितना होता है हेक्सागोन का, 120 डिग्री। अगर टोटल एंगल 120 डिग्री है और क्योंकि ये इक्वल है, सो व्हाट इज एंगल AFO? AFO कितना होना चाहिए, पूरा 120 डिग्री होता है। व्हाट इज एंगल AFO? 60. So this is a 60 degree. If this is a सर 60 degree, कैसे आया? ओके, पूरा एंगल हेक्सागोन का 120 डिग्री होता है। यस सर। दोनों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सर ऐसे क्योंकि इक्वल कैसे पता है? ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है, हम्म। राइट। और उसको अगर मैं सेंटर से कट करूंगा तो जो दोनों पार्ट्स बनेंगे दोनों आइडेंटिकल होंगे, हाँ सर। और आइडेंटिकल है तो दोनों के एंगल्स इक्वल। ठीक है सर। हाँ। 60, this is 60, this is also a 60 degree, राइट। सो जो अपना ट्रायंगल बना है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो क्या सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है? सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई गेस मेरा बीच में वॉइस ब्रेक हो गया था। So if this is an equilateral triangle, I can say that hexagon is made up of 6 equilateral triangle. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है जी, ये पार्ट क्लियर सभी को? हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। Now let's come back to the question. They have asked FBD. So if I join this, कितने पार्ट्स मिल रहे हैं मुझे? अगर मैं सबका एरिया लेट से 2 2 2 पकड़ लूं, so 2 2, this is also 2 and 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 2. So FBD का एरिया, FBD सारे पार्ट सिमिलर है, तो 2 4 6 8 10 12, हेक्सागन का 12 और 12 24। व्हाट इज द, इट हैज टू बी 1। सर अभी इसमें वापस हमने एक ट्रायंगल में ऐसे कैसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर एक ट्रायंगल के हाफ हाफ टुकड़े होंगे जब ये एफबीडी ट्रायंगल बनेगा? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, अब ठीक है मेरी वॉइस की? यस सर। यस सर। ठीक है। सो अभी हमने ये देखा है कि ये कैसे इक्वल होंगे। कहना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यस सर, वो समझ गए। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू दिस। इफ दिस इज एन ABO, सो आपका कंसर्न है कि भाई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल कैसे हुआ, राइट? हम्म। ठीक है।
So can I say these two sides are equal? Yes. uh, uh, this is 60 degree, this is also 60 degree. हाँ, क्योंकि 6 ट्रायंगल्स बनाए थे तो वो हाँ 360/660, हाँ, यस, राइट। सो 60 है, ये 90 है, हम्म। सो बचा हुआ 30 है, और क्योंकि साइड कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, यस। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हुआ। यस। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो मैं ए ओ डी से ऊपर देखूं या नीचे देखूं, सिमिलर दिखने चाहिए। हम्म। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल। यस। तो ऐसे जितने भी बनेंगे सारे सिमिलर और इक्वल आएंगे। ठीक है, सो वन सर वे ऑफ वापस डूइंग अभी दिस। इसके लिए हमने मतलब 90 डिग्री, ये भी कैसे अज्यूम किया कि 90 डिग्री है? ओके गुड। ये 90 डिग्री कैसे आया? ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि ये इक्वल है, दिस वाज 60 डिग्री, ठीक है, हम्म। और this is also a 60 degree, and this is also 60 degree, क्योंकि if they are similar, both हम्म। are 30, so the remaining has to be 90। 30 आ गया है, 60 आ गया है, तो this will be 90। ओके सर। सर पता नहीं, मतलब बहुत ऐसे लग रहा है कि कुछ चीजें हाँ कनेक्ट मतलब नहीं हो पा रही है सर, लाइक अज्यूम करना दिखने, है, क्या करना है। हाँ दिखने दिखने में तो दिख रहा है कि 90 है, लेकिन वो हाँ। मान कैसे लो कि हर बार ऐसा होता है जो दिखता है वो होता नहीं है, और इस बार दिख रहा है तो भी यस मानना का मन नहीं हो रहा। ठीक है यस। चलो, लेट्स सॉल्व दिस। ठीक है, कैन आई से दिस इज 120 डिग्री? यस ये ठीक है, दिस टू आर इक्वल। यस सर। So if these two are equal, so let's say if this is 2, or let's say what is the ratio, 1 root 3, हम्म है ना? So हम्म। what is the area of FBD? Area of triangle FBD, because it's an equilateral triangle, so it will be root 3 by 4 into root 3 square, which is ओके। root 3 by 4 into 3। ठीक है, हाँ। यस now सर। let's find the area of hexagon. Area of hexagon is 6 multiplied by root 3 by 4 into side square. Side is 1, so it's 1 square. So what is the area of गॉट इट सर, hexagon? 1/2 आ गया रेशियो। है ना? हाँ सर, आ समझ गया? गया। यस। ठीक है। थैंक यू। यस यस अक्षय बोलो। ठीक है, अक्षय का कुछ डाउट था, आई गेस ही लीव द क्लास। ठीक है, एंड व्हाट यू कैन डू इसके कि एक चीज याद रखना, जब भी सिमेट्रिकल फिगर है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो उसको आप कैसे भी कट करो, सारे पार्ट्स जो बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे। दैट्स व्हाई 1 1 1 1 1 1, एंड दिस इज आल्सो 1 1 1 1 1। तो हेक्सागन एफबीडी का एरिया 6 है, तो आपके हेक्सागन का एरिया 12 हुआ। दैट्स व्हाई 1:2। यस सर, गॉट इट। ठीक थैंक है, यू सर। हाँ। ओके यस। अक्षय आपका डाउट था? अक्षय, ठीक है चलो, अगर आपका क्वेश्चन वन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कर लेना। नाउ क्योंकि हेक्सागन इज मेड अप ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, I can say that area of equilateral triangle, sorry, area of hexagon has to be 6 multiplied by area of a triangle, which is root 3 by 4 into side square, and each interior angle is 120 degree. So I hope आपको ये वाले सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। संस्कार, समृद्धि, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Find the area of a regular hexagon in which the perpendicular drawn from center to any side is 12 centimeter long.
ठीक है, ओके। So area of hexagon is 6 into root 3 by 4 into side square। तो भाई 6 भी कांस्टेंट है, रूट 3 बाय 4 भी कांस्टेंट है, साइड निकाल लो तो एरिया निकाल सकते हैं। आदित्य, तो आदित्य का तो माइक का प्रॉब्लम है। संस्कार, साइड निकाल सकते हो तुम? सर नहीं समझ, मतलब नहीं समझ रहा कैसे निकालें। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आया? यस सर। कैन आई से दिस इज अ परपेंडिकुलर? यस सर। नाउ इफ आई ड्रॉ फ्रॉम सेंटर, टेल मी एंगल सीडीओ। सीडीओ कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट है, सीडीओ विल बी अ 60 डिग्री। तो ये 60, ये 90, सो कैन आई से दिस इज अ 30 डिग्री। यस सर। Now let me name this as M. Can I say opposite side of 30 is half of hypotenuse? यस सर। So this will be 6, right? And नो this is सर, also 6. सर हाइपोटेन्यूस ओडी है ना। अच्छा ओके, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, सो 60 के अपोजिट में 12 है, तो 30 के अपोजिट में 12 अपॉन रूट 3 होगा। यस। सो एम डी हमारा 12 अपॉन रूट 3 है, तो जो पूरी साइड है सी डी विल बी ट्वाइस ऑफ इट, दैट इज 24 अपॉन रूट 3। यस। अब अगर मेरे पास साइड आ गई है तो ये फॉर्मूले में रख देते हैं, 6 इंटू रूट 3 बाय 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर, यस। राइट? सो इट विल बी 6 इंटू रूट 3 बाय 4, 24 का स्क्वायर इज 576 डिवाइडेड बाय 3। यस। सो लेट्स सॉल्व दिस। ये 1, तो ये 2, ये 1, तो ये 2, 576 डिवाइडेड बाय 2 इज 288 इंटू रूट 3। गॉट इट। क्लियर? तो हमेशा याद रखना कि वो जो है वो 60 डिग्री 30 डिग्री सब कुछ वही लगने वाला है हेक्सागोन में तो। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या क्वेश्चन क्लियर है आप सभी लोगों को? आदित्य, चिन्मय, ठीक है, चलो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A regular hexagon PQR STU is made by joining the midpoints of another regular hexagon ABCDEF. Find the ratio of PQR STU to ABCDEF.
Animesh, it will be ulta, I guess. संस्कार अनम्यूट कर सकते हो? यस सर। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपका लॉजिक क्या रहेगा? सर एक बार ट्रायंगल बना के देख सकते हैं सेंटर से पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, लेट से मैंने ओ को सेंटर पे रख के निकाल भी लिया। हाँ ठीक है, फिर एक सर एक बार साइड ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी साइड ज्वाइन करूं? सर क्यू और पी को भी ज्वाइन कर दो एक बार। क्यू और पी तो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। मतलब ओ से कनेक्ट। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, कर लिया। सर अभी कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब वो साइड मतलब ओ ए और ओ पी में क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ ओ लिंक ए वाइज। और ओ पी में, बढ़िया। सो ओ ए इज द साइड ऑफ बड़ा हेक्सागोन, लेकिन पीओ का कोई रिलेशन नहीं है। पी क्यू इज द साइड ऑफ हेक्सागोन। तो अगर मुझे ए बी या फिर ए ओ और पी क्यू में कोई रिलेशन मिल गया तो मेरा काम जन गया। तो सीधा है 6 × √3/4 × साइड स्क्वायर। और क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो अगर ए एफ और पीयू भी मिल जाए, ए एफ और पीयू भी मिल जाए तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो ए एफ और पीयू में कोई रिलेशन देखते हैं। चलो, हाँ कित, क्या आप बताओ 1:3 कैसे लाया आपने? सर वो अ, अगर हम एक पी क्यू एंगल को ले तो ए क्यू और ए पी इक्वल है और हाँ एंगल ए 120 है। ओके, तो अगर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने साइड को, तो ठीक 30 है, 60 90 आ जाएगा। तो ठीक है, अगर हमने ए क्यू को ए अज्यूम किया हाँ तो वो जो परपेंडिकुलर से वो जो आधा डिस्टेंस है वो A/√3 आ जाएगा, मतलब ठीक साइड्स है, का रेशियो मिल गया सर। ओके ठीक है। तो आपने लॉजिक तो सही लगाया, थोड़ा सा शायद आपके कैलकुलेशन में कुछ गलत हुआ है। ठीक है, चलो, यस। लेट्स सॉल्व दिस। व्हाट इज दिस एंगल? 120 डिग्री। सो दिस एंगल इज अ 120 डिग्री। ये सबको क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दो यस और नो। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो ये दोनों एंगल्स हुए 30 30 डिग्री। ठीक है, नाउ इफ आई से एएफ अगर मैं 4 बोलूं तो पीएफ मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि मिड पॉइंट था। रिप्लाई कर दो यहां तक के क्लियर, 30 30 120, एएफ 4 तो पीएफ 2। नाउ इफ आई से कि भाई हमारा पीएफ जो है अगर वो 2 है और एफ यू भी 2 है, ये 120 डिग्री, दिस इज 30 एंड 30। सो पीयू कितना होना चाहिए? जल्दी से रिप्लाई करो, पीयू कितना होगा? एएफ 4 था, पीयू कितना होगा? सो
what we have learned is in 120 30 30 the ratio is 1 root 3. So 2 pu will be 2 into root 3. So your pu is 2 into root 3. So क्या pu 2 root 3 clear? ठीक है। समृद्धि आदित्य pu 2 root 3 क्लियर? क्लियर है तो हाँ, नहीं तो ना। ठीक है। हर्षल देवशीष अक्षय केतकी pu 2 root 3 क्लियर? देवशीष नहीं क्लियर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देवशीष कैन यू प्लीज अनम्यूट? हाँ सर। ठीक है, लेट्स जूम द फिगर। AF is 4, so PF is 2. Is this part clear? हाँ सर। FU is also 2, ये भी clear? So what is 120 degree and 30 30 का relation? If this is 1, this is 1, this has to be root 3. So ratio क्या होता है? 1 root 3 होता है। So इधर से मुझे इधर जाना है तो मेरे को root 3 से मल्टीप्लाई करने का। So can I say PU has to be 2 multiplied by root 3? Now is it clear? PU is 2 root 3. देवशीष? हाँ सर, समझ गए। ओके, सो PU 2 root 3 है और AF है हमारा 4. सो लेट्स अप्लाई एरिया ऑफ हेक्सागन। सो छोटा वाला क्या होगा? 6 into root 3 by 4 into PU का स्क्वायर, दैट इज 2 into root 3 का स्क्वायर। और बड़ा वाला क्या होगा? 6 into root 3 by 4 into AF का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। आई एम गोइंग टू कैंसल दिस पार्ट। सो 2 root 3 का स्क्वायर इज 4 into 3. And what is 4 into 4? It's 4 into 4. Let's cancel this 4 and 4. Final answer I will be left with 3 by 4. So please let me know, 3 by 4 clear or not? Or should I repeat this? Samruddhi, Aditya, Sanskar. ठीक है। So let's solve one CAT का question. Let ABCD be a regular hexagon with side 1 centimeter. Area in centimeter of a square with AC on side is. ऐसा कुछ दिया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि आपको ये स्क्वायर का एरिया निकालना है। अश्विनी आपका आ गया? यस सर 3 आया है। ठीक है, गुड। केतकी आपका आया?
सर मेरी साइड में कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये हाँ पता सर, आ होना गया चाहिए सर। कि आ गया। 30 30 120 वाला रूल पता है आपको कितनी? यस सर, यस सर। सो इफ दिस इज 1, this is 1, this has to be हाँ, root रूट 3. 3 आ गया। यस सर। So if AC is root 3, what is the area of square side square? So 3। it should be root 3 का square, which is यस। 3, है ना? हाँ सर, So आ गया। pretty simple question. What about others? Is this clear? ठीक है, चलो let's move to the next question. If the area of a regular hexagon is equal to the area of an equilateral triangle of side 12 centimeter, then the length in centimeter of each side of the hexagon is? चलो भाई बढ़िया। ओके, तो कितने लोगों का आ गया? समृद्धि आपका आया? नो सर, ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, बताओ क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। हेक्सागन, जो रेगुलर हेक्सागन है उसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल रहा। हम्म, और उसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, यही है। यस। अपने को एस फाइंड करना है ना? सो यस सर। लेट्स रूट 3/4 दोनों जगह से कैंसिल कर देते। सो व्हाट इज एस स्क्वायर? इट इज 12 into 12 divided by 6. यस। So can I say s square is 24? So s will be 2 into 2 into 6, that is 2 root 6. यस सर। Clear? ठीक है। What about others? Akshay, clear? Okay. Try this one.
ठीक है। सो एक चीज आप ध्यान रखना, whenever you saw a question of hexagon, the diagram should be vertex on top। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो हेक्सागोन ऐसा वाला भी बना सकता हूँ, दिस इज साइड ऑन टॉप। साइड ऑन टॉप नहीं, हम डायग्राम बनाएंगे वर्टेक्स ऑन टॉप। ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। और so let's join AC, this is your T and we need to find AT। ठीक है। फाइंड CT फर्स्ट। CT कितना होगा, जल्दी से रिप्लाई करो सभी लोग। साइड दूर है, T is the midpoint, CT should be CT should be 1। बढ़िया। Now we know that this is 30 degree, this is also 30 degree and this is 120 degree, so the ratio is 1/√3। Tell me length of AC। AC कितना होना चाहिए, 2 into √3। Perfect। Now if I know angle ACB 30 degree है, tell me angle ACT। ACT कितना होना चाहिए, पूरा 120 डिग्री होता है हेक्सागोन का, उसमें से 30 निकल गया तो बचा 90। और अगर ये 90 बचा है, so this is a perpendicular and if this is a perpendicular I am going to check triangle ACT। ACT, yes। So can I apply Pythagoras theorem in this triangle ACT में? So what does Pythagoras theorem says कि your AT square is simply
AC square plus CT square. So I have AC का side which is 2 root 3 का square plus 1 का square. So 2 root 3 is 4 into 3, 12 plus 1, this is 13. So if 80 square is 13, 80 has to be root of 13. That is option B. So please check and reply. Is this part clear or should I repeat this? Tirki, any doubt, any confusion? No, sir, this is clear. समृद्धि, अक्षय, आदित्य, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, चलो अपन अब ट्रू फॉल्स खेलते हैं थोड़ा सा. ओके, सो you have 32 teeth. ट्रू और फॉल्स? देखते हैं क्या लोग रिप्लाई करते हो. सभी को 32 दांत होते हैं. ट्रू और फॉल्स? समृद्धि इसका सही जवाब देंगी. ये सर होते हैं यूजुअली. पक्का श्योर? विजडम टूथ वगैरह काउंट करके सबट्रैक्ट करने के बाद 32 होते हैं? श्योर? यस समृद्धि, सर. ठीक है, चलो एक बार बायो चेक कर लेना तुम. शायद तुम्हें कुछ अलग पता है या मुझे कुछ अलग पता है. मेरे हिसाब से 32 नहीं होते हैं. वो 32 बोलते हैं लेकिन विजडम टूथ अगर 4 निकाल लिए तो 28 या 29 ही बचते हैं. सो ठीक है, कोई नहीं. हो सकता है तुम्हारा विजडम टूथ अब तक नहीं हुआ है. ओके, कूल. सो देखते हैं कि इसमें से तुम कितने स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स है बता सकते हो. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ठीक है. ओके, समृद्धि अनम्यूट करना प्लीज. यस सर. ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लग रहा है, ट्रू होगा फॉल्स होगा? सर ये शायद फॉल्स होगा. ठीक है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है आपको क्या है? n माइनस हाँ. 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय डिवाइड n. बाय. यस. ठीक है, सो डेकागॉन बोले तो 10 साइड. तो मेरा Yes. फॉर्मूला हुआ इंटीरियर एंगल का 8 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 10. Yes. So 0 0 cancel. 8 into 18 is a 144 degree. Yes. So this is a true statement. Yes sir. ठीक है. Now let's look at the Sir. second question.
हाँ आई थॉट कि 144 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने शायद गलत किया। नहीं, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n है। आपका जो फॉर्मूला बुक है वो बिल्कुल रेडी ये होना चाहिए, और आपको सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन समृद्धि, अगर तुम्हें कोई बहुत सारी प्रॉपर्टी दे तो तुम उसे संभाल के रखोगे या उसका खर्चा कर दोगे प्रॉपर्टी को, संभाल के रखेंगे। है ना? तो मैंने भी वैसे जितनी सारी मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी तुम्हारे नाम कर दी, लेकिन तुम उसको ठीक से रख ही नहीं रहे हो। सर रख देंगे अभी पूरा अच्छे से। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट, थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज 180 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इंटीरियर निकाल के सप्लीमेंट्री कर लो, या फिर एक्सटीरियर का सीधा सा फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय एन। सो 360 डिवाइडेड बाय हेक्सागोन है, सिक्स साइड है, तो एक्सटीरियर एंगल आया 60 डिग्री। थ्राइस द एक्सटीरियर यानी 3 टाइम्स 60, 3 टाइम्स into 60 is 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो ए और बी तो ट्रू आ गए। देवशीष क्लियर? आदित्य क्लियर? ठीक है। एंड नाउ कम्स द थर्ड फॉर्मूला। समृद्धि, थर्ड फॉर्मूला डायगोनल्स का फॉर्मूला आपको पता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स यस सर, वो विच D1 इज, इंटू D2 शायद। अच्छा चलो, तुम्हारा ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही खराब है। नहीं नहीं सो सॉरी सर। नंबर नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आपने मुझे फॉर्मूला बताया हाफ d1 d2, दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। मैं पूछा था नंबर ऑफ डायगोनल्स, सो इट इज n इंटू n-3/2। तो ऑक्टागन बोले तो आठ साइड में होंगी, 8 इंटू 5/2, ये 1 है ये 4 है, तो इसमें 20 डायगोनल्स ऑक्टागन में। और पेंटागन में कितनी आएंगी? सो 5 इंटू 5-3 दैट इज 2/2, सो इसमें आई 5। सो क्या ये इसके 4 गुना है? यस, दिस इज सेज 4 टाइम्स होनी चाहिए, बिल्कुल 4 टाइम्स है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो यस, सभी लोगों को क्लियर? रिप्लाई कर दो यस और नो। ठीक है, चलो, सो लेट्स सॉल्व दिस। Corners are cut from an equilateral triangle to produce a regular hexagon. Regular hexagon का मतलब क्या है? सब कुछ इक्वल है, so you cannot cut like this. This is not a regular hexagon. Corners are cut from an equilateral triangle to produce a regular hexagon. Ratio of hexagon to that of triangle is
सो इस टाइप का कुछ फिगर आएगा। दिस इज योर रेगुलर हेक्सागन। और जब आपने पॉइंट्स जोड़े तो आपको पता चला कि ओके हेक्सागन इज आल्सो मेड अप ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं हेक्सागन में देखूं तो कितने हैं ट्रायंगल्स? 1 2 3 4 5 6। सो हेक्सागन का एरिया आया 6 और इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना होगा? ये 3 और ऐड हो जाएंगे 7 8 और 9। सो इट विल बी 9। द रेशियो इज 2/3 which is option A। संस्कार, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर बट वो सारे ट्रायंगल सेम ही साइज के रहेंगे ना, मतलब यस, इक्विलैटरल सारे ट्रायंगल्स हेक्सागन को तो रेगुलर बोला तो सभी इक्वल रहोगे। यस सर। सो इनका तो कोई हमें टेंशन ही नहीं है, ये सारे सब के सब इक्वल हुए। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एंगल? 120 डिग्री। सो दिस विल बी 60 डिग्री यस and if this is 60 degree, this is also 60 degree, this is already given as 60 degree, तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। सर मतलब हेक्सागन वाला ट्रायंगल इक्वल रहेगा क्या ट्रायंगल का कट वाले पार्ट यस, से? वही वही मैं समझा रहा हूँ कि दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो अभी बना हुआ है, यस सर। जो हेक्सागन की साइड में है और जो ट्रायंगल की साइड में है, देख लो दोनों की साइड्स इक्वल आई है। यस सर। यस तो अगर ये इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है और दोनों की साइड भी सेम है तो सभी इक्वल हो गए। यस सो अभी ठीक है, 6/9 हो गया। यस सर। ठीक है, ओके। समृद्धि, कोई डाउट? अक्षय, देवशीष? ठीक है, चलो अगर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सर हाँ केतकी। एक था, मतलब सॉल्व तो कर दिया था सर, बट हमने ऐसे कैसे अज्यूम किया कि जो A to D है और नीचे वाला जो ग्रीन ट्रायंगल है वो दोनों भी सेम रेशियो में कट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो मतलब मैंने वही बोला ना कि ज्योमेट्री में क्या है कि आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं भी देख रहे हो तो फिर उसका लॉजिक ढूंढते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ सारे ट्रायंगल्स इक्वल है? हाँ। क्या सारी साइड्स इक्वल है? यस सर। अभी हमने देखा था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल था, राइट? तो साइड सेम है पर बाहर वाला इक्विलैटरल हम कैसे बोल रहे हैं? ओके ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो एंगल है हेक्सागन का ये 120 डिग्री का है, सो बचा हुआ एंगल 60 डिग्री। ओके, और ये भी 60 डिग्री है। हाँ 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 सर, ऐसे ये ही किया था मैंने, इक्विलैटरल हुआ। वो लॉजिक। यस। गॉट इट, गॉट सो कहने से कि इनका जो एरिया है दोनों का लेट से एक्स एक्स हो गया हाँ विद द हाँ सर, सेम अब तो लॉजिक, समझ गया। यस सर। है ना? ये सभी हाँ इक्वल हाँ हो गए। यस सर, यस। ठीक है, हाँ। ओके। या फिर अगर तुमने कभी पत्ते खेले होंगे, सो अगर बचपन में तुमने कभी लगाया होगा, ऑब्वियसली जहां तक मुझे लग रहा है तुम जब तक छोटे थे तब तो मोबाइल नहीं आया था, तो उस टाइम पे गेम ही ये वाले हुए करते थे इस यस टाइप से सर। लगाने के। तो इस टाइप के लगाने हैं तो एक्चुअल में है तो वही वो फिगर सारा कि यस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हेक्सागन लगा दिया 1 2 3 4 5 6 यस। इस टाइप से। ठीक है जी। कित की तुम कौन से स्टैंडर्ड में थी जब तुमने मोबाइल खरीदा? मतलब तुमको खुद का पर्सनल मोबाइल मिला? आई थिंक सर 8-9 में ही दे दिया था शायद। ठीक है, मतलब मुझे भी 8 9 में मिल गया था, मतलब मैं ज्यादा लड़का बच्चा हूँ उस लॉजिक से तो, क्योंकि 10 साल पहले मिला। ठीक है चल, इसलिए शायद मेरा करियर खराब हुआ, अदरवाइज मैं आज कुछ और अच्छा कर रहा होता। ठीक है, मैं वैसे अभी भी अच्छा ही कर रहा हूँ, खुद से तो मैं खुशी हूँ, बाद में दुनिया को तो कोई खुश नहीं रख सकता है। क्या तुमसे तुम्हारे आजू बाजू सब लोग खुश है? कितनी ऑफिस वाले, घर वाले, दोस्त वोस्त सब? सर मैं खुश नहीं हूँ उनसे, मैं सब बाकी खुश है शायद। मैं ही ठीक। नाखुश इंसान हूँ सर। ओके अश्विनी, तुम्हारे आजू बाजू वाले से तुम मतलब सब खुश है तुमसे लोग? सर खुश रहे या ना रहे मुझे क्या करना है ना उनसे, शायद वो भी।
ठीक है। और संस्कार तुमसे? न्यूट्रल बोल सकते हैं। अच्छा, ना तो वो खुश है ना वो तुमसे दुखी है। ठीक है। और हर्षल तुमसे? सर डिपेंड करता है सर, अच्छा चलो, फैमिली बताओ, फैमिली खुश है तुमसे? कभी रहती है कभी नहीं। अच्छा, कभी खुशी कभी गम। देवोशीष, व्हाट अबाउट यू? हाँ सर, खुशी रहते हैं मोस्टली। चलो भाई, बढ़िया पढ़ाई के है। मामले में ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, पढ़ाई के मामले में। ठीक है। अनिमेश तुमसे? सर झेल रहे हैं मुझे, बस काफी है। अच्छा, कि बस ठीक है, जल्दी से इसके हाथ पीले कर देते ताकि किसी और का कटेगा, हम बच जाएंगे, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा ठीक है। वैसे मतलब एक ऐसे मैंने कहावत सुनी थी कि मतलब सबको खुश रखना तो भगवान के भी बस की बात नहीं है। सबको खुश रखना भगवान के बस की बात नहीं है। तो तुम तो इंसान ही ठहरे। तो ये चीज काफी कभी काम में आती है। कभी मैं फ्रस्ट्रेट रहा ना, तो मैं ये चीज याद कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपने हो गए आज 8 क्वेश्चंस और बचे हैं 5 क्वेश्चंस। तो चलो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। नाउ A and B be two regular polygons having A and B side respectively. If B is 2A and interior angle of B is 3 by 2 times of each interior angle of A, then each interior angle in degrees of a regular polygon with A plus B sides is. ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना है, तो आप लोग सभी बता दो कि शुड आई एक्सप्लेन दिस और यू वांट टू ट्राई दिस? ट्राई और एक्सप्लेन। जनता जनार्दन है, तो सभी लोग रिप्लाई करो। आप लोग ट्राई करना चाहते हो और शुड आई एक्सप्लेन दिस? ठीक है, यू कैन ट्राई। चलो ट्राई करो। लेट मी टेल यू सिंपल सी चीज। अगर ए साइड्स है तो ईच इंटीरियर एंगल विल बी a माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय ए। हर्षल, आपने कैलकुलेशंस ठीक से करी? नाउ इट्स 150। गुड। ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस। संस्कार, कैलकुलेशंस बोलो क्या क्या करना पड़ेगा? सर इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा पहले से। ओके, ए माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई ए और बी माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई बी। इसका बोला है 3/2 टाइम्स, सो 3/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? यस। और इट इज ऑल्सो गिवन a is twice of b is twice of a, so let's replace b with a 2a, है ना? यस। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री और 180 डिग्री कैंसिल हो गया, 2a और 2a भी कैंसिल हो गया। सो 3 इंटू a माइनस टू इज 2a माइनस टू, यही आया था। यस। सो 3a माइनस 6 इज 2a माइनस टू और a विल बी 4, है ना? Yes. So if
A is 4, B will be double of that, that is 8, and A plus B is 12. तो इंटीरियर एंगल जिसमें 12 साइड्स है, तो इट विल बी 12 minus 2 into 180 divided by 12. So कितना हुआ ये? 10 into 180 degree divided by 12. So this is 5, this is 6, ये 1, ये 30, 30 into 5 is 150 degree. So answer is 150 degree. Yes. ठीक है, okay. और what is the other way for solving this? अश्विनी, आपने भी ऐसे ही किया था? सर हाँ, मैंने इक्वेशन से किया था। ओके, और अनिमेश आपने? यस ऐसे ही क्या था। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द इजी वे। अगर 3 साइड है तो इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, 4 साइड पे 90 डिग्री होता है, 5 साइड पे 108 डिग्री होता है, 6 साइड पे 120 डिग्री होता है, 8 साइड पे 135 डिग्री होता है, 9 साइड पे इट इज 140 डिग्री, 10 साइड पे 144 एंड 12 साइड्स पे इट्स 150 डिग्री। ये चीज आप लोग नोट कर लो एक बार, और एक बार कंफर्म भी कर लो मैंने सब कुछ सही लिखा है। सो ये चीज यूनिवर्सली ट्रू है। 3 साइड है तो 60 डिग्री, 4 साइड है तो 90, 5 साइड है तो 108। नोट कर लिया? ठीक है, अब ध्यान से देखना, B is given as twice of A. B is given twice of A and angle is 3/2 times. मतलब साइड तो डबल होंगी लेकिन एंगल 1.5 गुना होगा। ठीक है, सो इफ आई से कि अगर A 3 है, इफ आई से A अगर 3 है तो B हमारा 6 हुआ, साइड डबल होगी, एंगल 1.5 गुना हुआ क्या? नहीं जी, एंगल तो डबल हो रहा है, मतलब ये वैल्यू A की करेक्ट नहीं है। इफ आई चेक A अगर 4 है तो आपका जो B है वो डबल होगा 8, ये भी ठीक है, और एंगल 1.5 गुना हो गया क्या? बिल्कुल हो गया है। सो 90 का डबल 135 हो चुका है। सो हमारे जो अजम्पशन थे A4 और B8 ये अपने करेक्ट हो गए, और अगर ये करेक्ट है तो A प्लस बी में 12 साइड्स हुई, और अगर 12 साइड्स है तो एंगल 150 डिग्री का हो गया। प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर और नॉट? सर इस टेबल की कोई ट्रिक है क्या? नहीं, टेबल का कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट है तो ये कभी चेंज नहीं होगा। और सर इसमें 7 और 11 का क्यों नहीं मेंशन किया? संस्कार क्या बोल रहे थे आप? सर इसमें 7 और 11 का क्यों नहीं मेंशन किया था? ओके, 7 और 11 क्यों मेंशन नहीं किया? ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज n-2 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n. यस सर। So 7 minus 2, 5 into 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 7। ये जो एंगल आएगा ये आपका जो आएगा वो इक्वल नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, इसलिए। ठीक है संस्कार? यस सर। ओके, सो ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी आया था, 21 में भी आया था, और लकीली 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन था, 2023 में जब कैट डिफिकल्ट थी, तो काफी हेल्पफुल है ये वाली चीज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, कर सकते हो क्या ये बताना है, यस और नो। Sides of a cyclic quadrature are given. So what you have to do, you have to just apply the formula of s minus a, s minus b, s minus c and s minus d, where s is the semi perimeter. Okay, so I hope आप सभी को ये आ गया होगा. Let's move to question number 11. What is the ratio of area of bigger circle to the smaller circle? ठीक है, अनिमेश बोल रहा है 9:1 होना चाहिए के, और अश्विनी बोल रही है 4:1 होना चाहिए. अश्विनी आपका लॉजिक दो, 4:1 का क्या किया आपने? और सर मैंने हाइट निकाली लाइक अब जैसे मैंने कंसिडर किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 3 है, ओके, तो हाइट निकली 3√3. इट शुड बी √3/2 × 3 है ना, तो 3 हाँ √3 सर, बाय 2. हाँ सर यही गलत हो गया. अच्छा, ओके, ठीक है. चलो, व्हाट आई एम गोइंग टू अज्यूम इज, लेट्स से द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 9. अभी के लिए मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है. लेट्स टेक डी एंड ई एंड जॉइन दिस. तो अभी के लिए मैंने क्या अज्यूम किया है कि इसकी हाइट है 9 पूरे ट्रायंगल की, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जो अपना सेंटर है, इन सेंटर है, सेंट्रॉइड है, सर्कम सेंटर है,
वो सब कोइंसिडेंट होता है. सो दिस विल बी गेट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1. 2 parts toward vertex, 1 parts toward side. So can I say this will be 3 and this will be 6? यहाँ तक का क्लियर? एक बार रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, यस और नो. ठीक है. व्हाट अबाउट अदर्स? आदित्य, क्या ये पार्ट आपको समझ में आया? ठीक है. So if this is 3, because this is a radius, so if I rotate this, this is also 3. Now 3 and 3. So 6 is gone. Remaining part is again 3. So this is also a 3. So ये क्या हो गया है? अगर मैं देखूं तो 3, 3 and 3. Perfect. Okay. यहाँ तक क्लियर सभी लोग? प्लीज लेट मी नो यस और नो. यस. सर एक डाउट है सर, वो Yes. जो हाइट पकड़ी थी 9, वो अपन ने हाँ. ए से लेके तो बेस तक पकड़ी थी. यस. तो सर ये 3 आप सर्कल तक ही पकड़ रहे ना, छोटे वाले सर्कल के सरकमफेरेंस तक ही? यस. ना सर, यहाँ वो तक. येलो वाला 3. हाँ, येलो वाला 3. और सर ऊपर में कहाँ तक पकड़ रहे हो? ऊपर में पूरा ए तक. ओके सर. दिस इज ठीक है. यस सर, यस. ओके. सो ये 3 तो आ गए हमारे, है ना. तो मैं बोल रहा हूं कि बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल 9 का है, एबीसी, जिसकी हाइट 9 है. और जो छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है एडीई, उसकी हाइट 3 है. छोटा वाला भी इक्विलेटरल होगा. ठीक है. क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? ये हाइट 3 और 9 है. ओके. सो अगर हाइट 3 और 9 है तो, और ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन. तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका एरिया अगर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर, तो इसका एरिया आना चाहिए 9 का स्क्वायर, विच इज 81. सो एरिया का भी ये रेशियो होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? अगर 3:9 है तो एरिया का रेशियो होना चाहिए 9 और 81, विच इज 9:1. नाउ एरिया में क्या क्या बन सकता है? एरिया, जो ट्रायंगल का रेशियो है एरिया का, वही सर्कल का रेशियो होगा, वही इन सर्कल का होगा, वही सरकम सर्कल का होगा. तो अगर मैं बड़े वाले सर्कल की बात करूं तो वो एबीसी में इंस्क्राइब था, बड़ा वाला एबीसी में इंस्क्राइब था, और छोटा वाला एडीई में इंस्क्राइब है. सो विद द सेम लॉजिक, अगर मैं इनके डायमेंशंस देखूं तो वो 1:3 के रेशियो में है, लेकिन उनके अंदर एरिया के डायमेंशन देखूं तो वो 1:9 के रेशियो में आना चाहिए. तो आंसर इज 1:9. और इसको सरल क्रोनोलॉजी से अगर मैं समझना चाहूँ, तो अगर आपने आप सभी के घर के नक्शे देखे होंगे, तो अगर घर के नक्शे में हॉल, बेडरूम, किचन जिस रेशियो में होता है, जब आपका एक्चुअल घर बन जाएगा तो उसमें भी ये सब वही डायमेंशंस के होंगे. सो जो आपको छोटे ट्रायंगल में दिख रहा है उसको जूम कर दोगे तो वही रेशियो बड़े ट्रायंगल में मेंटेन होगा. तो एरिया का रेशियो अगर 9:1 है तो उनके अंदर के इन सर्कल का रेशियो भी 9:1 होना चाहिए. Obviously I can apply यहाँ पर similarity, tangents and other properties, but I think this is the simpler thing. One more thing you can do is कि अभी अपन ने देखा था कि 9 ट्रायंगल बनाए, तो बड़े वाले में 9 ट्रायंगल है और छोटे वाले में 1 है, तो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 9:1 है. तो उसी सेम लॉजिक से इनके अंदर के जो सर्कल है उनका भी रेशियो 9:1 होना चाहिए. ठीक है जी. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. अभी और 2 क्वेश्चन है. क्लियर? चले आगे. ओके. पॉइंट
EFGH lie on a square ABCD. If EFG is also a square whose area is 62.5% of AFGF and CG is longer than EB, then length of EB to that of CG is. So you have to solve this question with the help of options. चलो ऑप्शंस को यूज करो और सारा डेटा आपके सामने ही है और फिर अपन इसका डिस्कशन करेंगे. ठीक है हर्षल, आपका आंसर डी है. आपने कैसे किया बताओ. सर ईबी को 1 अज्यूम किया तो सीजी 3 होगा. अच्छा, EB को 1 अज्यूम किया तो CG 3 हुआ. और सीजी 3 है मींस एई 3 है. विच मीन्स दैट AE भी 3 है. ठीक है. तो टोटल 4 होगा तो उसका So, एरिया AB 4 है तो ABCD का एरिया 16 हो गया आके. और एएच 1 है. ठीक है. AH 1 है. हाँ ठीक है. तो एच की लेंथ होगी √10. ओके, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो आया √10. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. स्क्वायर उसका एरिया होगा 10 और सो 16 का EH अगर √10 आया है तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी √10 का स्क्वायर. √10 का स्क्वायर होता है 10. और So 16 का 10 62.5. upon 16 is, yes, it should be 62. 5 by 8, which is 62.5%. That's why option D should be the correct answer. Yes. बाकी लोग please reply clear or should I elaborate on this? चाहे तो A ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं वो क्यों नहीं आंसर है.
तो विदाउट ऑप्शन अगर किया तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा ना? बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़ा। तो क्योंकि मैंने वो 62.5 का वो 5/8 लेके ट्राई कर रही थी, पर वो आगे बहुत लेंदी हो रहा है। नहीं, वो आएगा ही नहीं, मतलब उसमें कितना भी ट्राई करो, मतलब ऑप्शंस क्यों दिए है भाई, कि ऑप्शन से अगर जल्दी आंसर आ जाए तो वही है, मतलब इन शॉर्ट वो लोग ये भी देख चेक करना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर है तो प्रेशर में तुम सारे रिसोर्सेस का सही से यूज कर पाते हो या नहीं। तो ऑब्वियसली रिसोर्सेस का यूज तो करेंगे। और व्हाट इज द अदर थिंग कि अगर आप इक्वेशन लेट्स से ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते हो तो 2 3 4 मिनट बाद लगेगा कि भाई ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, देयर मस्ट बी सम अदर लॉजिक टू सॉल्व दिस। सो यू कैन ट्राई विथ ऑप्शन। क्लियर समृद्धि? यस सर। Okay, perfect. So let's suppose if I choose 2 5. So if this is 2, this is 5, this has to be 25 और 2 √29. So area इसका होता है 29 और ये 5 है, ये 2 है, तो टोटल हुआ 7। So 29/49, ये 62.5% नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं है। With the same logics you can eliminate B, C as well. ठीक है, क्लियर? चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। If a rhombus has area 12 square centimeter and side 5 centimeter, length of the longer diagonal is। rhombus का एरिया 12 है और साइड 5 है, लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज। ठीक है, सो शून्य का तो आ गया। अनिमेश आपका? नहीं सर, अभी नहीं आया। ठीक है, बोलो क्या क्या इक्वेशंस बनी। सर इक्वेशन नहीं बनाई, मैं एक्चुअली ऑप्शन से सोच रहा था कि मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले इक्वेशन से देखते हैं, फिर ऑप्शन से भी देखते हैं।
इक्वेशन से देखना चाहा तो पहली इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25 और दूसरी इक्वेशन बनी हाफ ऑफ 2x into 2y is 12. So this will get cancelled. I will be left with 2xy is 12. सभी लोग एक बार यहाँ तक रिप्लाई कर दो, क्या ये चीज आपको समझ में आई है दोनों इक्वेशंस? So if I add this to equation, I will get x square plus y square plus 2xy is 37 और x plus y whole square is 37 और x plus y is root of 37. So x plus y is root of 37. And if I subtract these two equation, I will have x square plus y square minus 2xy is 13 or x minus y is root 13. तो क्या आप सभी को यहाँ तक पार्ट समझ में आ चुका है? एक बार रिप्लाई कर दो येस और नो कि x प्लस वाई हमारा रूट ऑफ 37 होगा एंड x माइनस y root 13. So if I add this to equation, I will get twice of x is root 37 plus root 13. So जो बड़ा डायगोनल था वो क्या था? 2x था और 2x का लेंथ कितना है? root 37 plus 13, which is option C. तो क्वेश्चन दिख रहा था ज्योमेट्री का लेकिन निकला अलजेब्रा का। हाँ जी, मेथड क्लियर है? तो मैं ऑप्शंस वाले भी मेथड बताता हूँ। सारा खेल रीअरेंजिंग का था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी दिया है, 2xy भी दिया है, तो वहां से आप x और y दोनों निकाल सकते हो। नहीं समझा क्या? प्लीज लेट मी नो। नहीं समझा है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। आदित्य आपको? ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस में एक दिया हुआ है, तो ये आप देख रहे हो कि दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अनिमेश, क्या ये क्लियर है? दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक। यस सर। तो एक रूट ये दिया है, तो दूसरा जो रूट है लॉन्गर डायगोनल अगर हमारा ऑप्शन है तो शॉर्टर डायगोनल जो भी होगा वो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। राइट। तो अगर एक रूट 13 प्लस 12 है तो दूसरा रूट आया होगा रूट 13 माइनस रूट 12। राइट, नाउ लेट्स फाइंड एरिया। इट्स हाफ ऑफ d1 into d2। ठीक है निमेश? So it is of the form a plus b into a minus b, which is a square minus b square. So 1 by 2. So 1 by 2 नहीं, हमें तो एरिया 12 चाहिए था, that's why I can eliminate option B. Yes sir. So clear? So let's check with option C then. एक रूट ये है तो दूसरा रूट होगा रूट 37 माइनस रूट 13। So half of d1 into d2. Again applying a square minus b square, so it's half of 37 minus 13। 37 minus 13 हुआ 24, 24 का आधा 12। So option C is the only answer that is going to satisfy this. So yes, ऐसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, so yes I am done। कल मैंने डाउट सेशन रखा है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं मटेरियल में से और उसमें अगर डाउट्स आते हैं तो आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो। द टॉपिक रेंज विल बी 2 सर्कल के 25 क्वेश्चंस एंड देन क्वाड्रिलैटरल्स के 25 क्वेश्चंस। तो टोटल 50 क्वेश्चंस में जितने भी डाउट्स आए तो वो अपन कल